Hello students, in last class you have studied about how to measure the vertical angles and the deflection angles using theodolite instrument. Today we will see what are the errors in theodolite work. As you know, the theodolite is very accurate instrument which is designed for measuring the horizontal as well as the vertical angles. When you use this instrument on ground for measuring the angles and for the traversing and many other works, if you have not handled that instrument properly or sufficient care is not taken, there may be chances of occurring errors while using the theodolite instrument. What are those errors? We will see one by one. There are mainly three types of errors. First one is instrumental errors, second one is personal error, third one is natural error. First one is instrumental errors. Errors due to imperfections and the non-adjustment of instrument are called as the instrumental errors. Due to non-adjustment and due to imperfections, what are the errors causes? Those errors are called as the instrumental errors. What are those errors? We will see one by one. First one is errors due to imperfect adjustments of plate level. Okay, due to this error, vertical axis of the instrument will not be truly vertical. Okay, जब इंस्ट्रूमेंट में प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं रहा तो वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल नहीं रहता है. ओके, इवन इफ यू ब्रॉट दैट बबल इनटू द सेंटर, द वर्टिकल एक्सिस विल नॉट बी ट्रूली वर्टिकल. दिस लीड्स द इम्प्रॉपर रीडिंग्स. ओके, आपको क्या होता है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स के रीडिंग्स नहीं मिलते. ओके, ड्यू टू दिस horizontal and vertical angles measured will not be correct, they will not be proper. Okay, so proper adjustments of plate level is very important. Second one is error due to line of collimation not being perpendicular to the horizontal axis. Okay, if line of collimation horizontal axis से परपेंडिकुलर नहीं रहा तो ये एरर अकर होता है. ओके, ड्यू टू दिस एरर क्या होता है, जो भी आप एंगल्स लेते हो, मतलब जो भी आप रीडिंग्स लेते हो, वो प्रॉपर मतलब एक्यूरेट नहीं रहता. ओके, सो दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशंस. ओके, बाय टेकिंग फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन you can eliminate this error. Next one is error due to imperfect adjustment of the vertical circle vernier. Okay, ये error कब होता है, जब आप वर्नियर C और D को प्रॉपरली सेट नहीं करते. मतलब when you, if आप क्या करते हो, वर्नियर C को 0 रीडिंग पे सेट नहीं किए हो तो आपको ये एरर ऑकर हो जाता है. ओके, दिस एरर ऑकर्स इफ द C and D वर्नियर्स डू नॉट रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल. ओके, आप प्रॉपरली वर्नियर C को 0 पे सेट नहीं किए तो इस एरर ऑकर हो जाता है. ओके, ड्यू टू दिस वॉट एवर यू विल टेक द vertical angles will not be correct. Okay, they will not be proper. Okay, next is error due to eccentricity of inner and outer axis. This error occurs when the centers of the horizontal scale plate and the vertical plate do not coincide with the common center. Okay, जो आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल का मेन प्लेट और वर्नियर प्लेट एक कॉमन सेंटर पॉइंट को कोइंसाइड नहीं हुआ तो ये एरर ऑकर हो जाता है. ओके, दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड by taking mean of the A and B
वर्नियर रीडिंग्स। मीन वैल्यूज आप ए और बी का रीडिंग्स मीन वैल्यू लिए तो ये एरर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। ओके, अगर ए और बी का जो डिफरेंस रहता है वो 180 डिग्री नहीं रहा तो ये एरर ऑकर हो जाता है। ओके, दिस एरर ऑकर्स इफ जीरो ऑफ ए एंड बी वर्नियर्स आर not at the ends of the same diameter and the difference between A and B vernier is not equal to 180 degree. if अगर आप A को 0 पे सेट किए तो B ऑटोमेटिकली 180 डिग्री पे आ जाते। इफ ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आया तो ये एरर ऑकर हो जाता है। ओके, दिस एरर कैन बी एलिमिनेटेड by taking both vernier readings and taking their mean value. Okay, next is error due to imperfect graduations on the horizontal scale. Okay, आपका जो भी मेन स्केल का ग्रेजुएशंस और वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन प्रॉपरली स्पेस नहीं रहा तो उनका रीडिंग्स का जो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहा तो ये एरर ऑकर हो जाता है। ओके, इफ द ग्रेजुएशंस ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल आर नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, this error occurs. This error can be eliminated by taking the observation over different parts of the horizontal scale. आप horizontal scale के different parts पे आप observation लिए तो आप इस error को eliminate कर सकते हो। ओके, next is second one is personal errors. These errors are classified in another two types. One is manipulation errors, second one is citing and reading errors. What are the manipulation errors? We will see. First one is errors due to inaccurate centering. आप स्टेशन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर सेंटरिंग नहीं किए तो ये एरर ऑकर हो जाता है। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेंटर्ड प्रॉपरली देयर विल बी एरर इन दी हॉरिजॉन्टल एंगल्स। आप अगर इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेंटरिंग नहीं किए तो प्लम बॉब यूज़ करके आप प्रॉपरली सेंटरिंग नहीं किए तो जो भी आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एंगल्स लेते हो वो रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं हो रहता है। ओके, दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय सेंटरिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन। स्टेशन के ऊपर आप प्लम बॉब यूज़ करके एक्यूरेट सेंटरिंग किए तो आप इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू inaccurate leveling. Okay, this error occurs when the level bubble is not centered correctly. आप 3 फुट स्क्रूज यूज करके लेवलिंग प्रॉपर नहीं किए तो ये एरर ऑकर हो जाता है। ओके, आप तीनों भी फुट स्क्रूज यूज करके बबल प्लेट को, मतलब जो आपका प्लेट बबल रहता है, जो भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो भी बबल प्रेजेंट रहता है, आप उसको एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं लाए तो ये एरर ऑकर हो जाता है। ओके, कैन बी एलिमिनेटेड बाय लेवलिंग केयरफुली। आप लेवलिंग को केयरफुली तीनों फुट स्क्रूज यूज करके उस बबल को सेंटर पे लेके आए तो इस एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, स्लिप इन स्क्रूज। दिस एरर ऑकर्स व्हेन द क्लैंप स्क्रूज आर नॉट प्रॉपरली टाइटन। ओके, जो भी आप क्लैंप स्क्रूज यूज करते हो वो प्रॉपरली आप टाइट नहीं किए तो ये एरर ऑकर हो जाते हैं। दिस एरर इज ऑफ सीरियस वन एज द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ साइट चेंजेस। ओके, क्या होता है, आप क्लैंप स्क्रूज फिट नहीं किए तो वो इंस्ट्रूमेंट रोटेट हो जाता है। जब भी आप कोई भी पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को जो साइड करते हो तब आप क्लैंप स्क्रू को फुल टाइट नहीं किए तो आप उस ऑब्जेक्ट से वो रोटेट भी हो जाता है। ओके, सो यू हैव टू प्रॉपरली clamp the screws, means you have to properly tight the screws while using. Improper use of tangent screws. This error is introduced when the tangent screws are improperly used. जब आप थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तब आप लोअर क्लैंप, मतलब लोअर टेंजेंट स्क्रू यूज करने छोड़ के आप क्या करते हो,
अपर क्लैंप का अपर टेंशन स्क्रू यूज करते हो तब क्या होता है, प्रॉपर एडजस्टमेंट्स नहीं होता है, मतलब प्रॉपर बाइसेक्शन नहीं होता है. ओके, ड्यू टू this error occurs. Okay, using correct tangent screw and carefully eliminates this error. Okay, आप प्रॉपर बाइसेक्शन के लिए प्रॉपर टेंजेंट स्क्रू यूज किए तो इस एरर को आप डिलीट कर सकते हो. नेक्स्ट इज साइटिंग एंड रीडिंग एरर्स. इनएक्यूरेट वर्नियर रीडिंग. ओके, आप वर्नियर रीडिंग्स एक्यूरेटली रीड नहीं किए तो ये एरर ऑकर हो जाता है. ओके, दिस एरर ऑकर्स व्हेन द वर्नियर रीडिंग्स आर नॉट टेकन एक्यूरेटली. ओके, आप अगर वर्नियर्स रीडिंग जो भी आपका बाइसेक्शन जो भी नॉर्मल मतलब आप जब रीडिंग लेते हो तब मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो भी एक कॉमन जो भी बाइसेक्ट हुआ रहता है वो आप प्रॉपरली करेक्ट साइट नहीं किए, मतलब प्रॉपरली आप रीडिंग नहीं लिए तो ये एरर ऑकर हो जाता है. दिस एरर इज एलिमिनेटेड बाय यूजिंग द रिपीटेशन मेथड. रिपीटेशन मेथड में क्या करते हो, आप एक ही एंगल को 3 बार आप साइड करते हो. ओके, आप एक ही एंगल को 3 बार साइड करने से आपका ये रीडिंग्स करेक्ट आ जाता है. ओके, यू कैन एलिमिनेट बाय यूजिंग दिस रिपीटेशन मेथड. Next is inaccurate sighting. If the station mark is not bisected accurately, okay, by the vertical crosshairs, this error occurs. Okay, आप एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली बाइसेक्ट नहीं किए तो क्रॉसहेयर यूज करके ये एरर ऑकर हो जाता है. ओके, यू हैव टू प्रॉपरली बाइसेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द tangent screws. Okay, you have to, for minor adjustment you have to use the tangent screws. Okay, you have to use the tangent screws and you have to properly bisect the object by means to eliminate this error. Next is parallax. This error occurs if eyepiece and object piece are not focused properly. आप ऑब्जेक्ट पीस और आई पीस को प्रॉपरली फोकस नहीं किए तो ये एरर ऑकर हो जाता है. ओके, आप जब भी टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हो तब भी आपको ये फोकसिंग अच्छे से करना पड़ता है. ओके, यू हैव टू फोकस आई पीस एज वेल एज द ऑब्जेक्ट पीस प्रॉपरली, तभी आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल रहता है. ओके, टू अवॉइड दिस एरर आई पीस एंड ऑब्जेक्ट पीस आर प्रॉपरली फोकस्ड वाइल साइटिंग. जब आप साइटिंग करते हो प्रॉपरली आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस दोनों को साइड करना पड़ता है. ओके, थर्ड वन इज नेचुरल एरर्स. ओके, नेचुरली जो भी एरर्स ऑकर होता है वो क्या है हम देखेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर इफेक्ट कॉजेस अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ थियोडोलाइट. ओके, ज़्यादा हीट रहा तो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, ड्यू टू दी heavy temperature there may be chances of expansion of the some parts of the theodolite. Okay, इसके वजह से क्या होता है, एरर ऑकर हो जाते हैं, मतलब रीडिंग्स ठीक से नहीं आता है. नेक्स्ट इज वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू विंड विल ऑल्सो कॉज एरर्स. क्या होता है, ड्यू टू heavy wind there may be vibration of parts in the theodolite. They may lead the errors to the survey work. Okay, next is bright sunlight and refraction effect cause the accurate sighting difficult. मतलब जब भी आप साइट करते रहते हो, जब सनलाइट ज़्यादा रहा तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आप जो भी ऑब्जेक्ट को साइट करते हो वो आप एक्यूरेट नहीं कर सकते. ओके, ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट you will be unable to sight the object properly. Next is if the ground is soft, unequal settlement of tripod cause errors. Okay, जब ग्राउंड का जो भी ग्राउंड इफ सॉफ्ट रहा तो ट्राइपॉड का स्टैंड उसके अंदर जाके छोड़ता है, मतलब द ग्राउंड इज सॉफ्ट, अनइक्वल सेटलमेंट हो जाता है ट्राइपॉड का, आपका प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होता है. ओके, ड्यू टू दिस यू मे गेट इनएक्यूरेट रीडिंग्स बाय रीडिंग. ओके, दीज आर द नेचुरल
errors. These are the main 3 errors in theodolite work. While you are conducting the theodolite surveying, you may face all these errors. Okay, to eliminate these errors, you have to properly adjust the instrument. Okay, you have to focus the object piece, eyepiece properly. You have to adjust you have to perform the temporary adjustment properly to eliminate all these errors. Okay, this part completes the first part of your theodolite surveying. Okay, in next class I will start the second part of the theodolite surveying, that is I will start the theodolite traversing part. Okay, next class we will see the theodolite traversing. Thank you.